All right, everyone. Now let's start a good portion about computation of drawing power. Yes. A little bit of theory, not much because we have to do a lot of questions about the drawing power, but let's understand कि drawing power है क्या. Drawing power generally addressed as DP is important concept for cash credit facility. मतलब I want cash on credit because I need to run my business. I may not always have my own cash, but I still need to pay my creditors, मेरे supplier को, मेरे employees को मुझे salary pay करना है. अगर मुझे monthly अपना business run करना है तो monthly I have to pay. अब मुझे मेरे क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे पेमेंट करना है, बट समटाइम्स मेरे डेटर्स मेरे मुझे उतने दिन में पैसे नहीं देंगे, मेरा सेल्स उतना नहीं रहेगा, तो आई वोंट बी एबल टू मैच माई लाइबिलिटीज. नो. So I just called up my bank and told bank, see, we have been maintaining a very good relationship for so many years. Why don't you give me a credit line where you give me a cash credit facility that is availed from bank or financial institution. Drawing power is the limit up to which firm or any company can withdraw from the working capital limit sanction. तो जितना वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन होगा उसके नीचे ड्राइंग पावर आएगा, और वो सैंक्शन लिमिट्स के अंदर ड्राइंग पावर जो रहता है उतना तक अमाउंट आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम योर क्रेडिट लाइन. Now, what is the difference between DP and sanction limit? The sanction limit is the total exposure that bank can take on a particular client for facilities like credit, cash credit, overdraft, export packing credit, non-funding exposure, etc. On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on primary सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट. सो मैंने सिंपल बैंक को ये बोला कि भाई मुझे मेरा नॉर्मल बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए यू गिव मी कैश क्रेडिट फैसिलिटी. तो बैंक ने बोला कि हाउ कैन आई नो, मतलब व्हाट इज द सिक्योरिटी आई गेट फॉर योर डेली बिजनेस. तो आई टोल्ड बैंक, या बैंक सुनो ना, डेली बिजनेस करने के लिए मेरे पास स्टॉक है ना, मेरे पास बुक्स में डेटर्स है ना, ऐसा तो नहीं है कि यू डोंट सी माई डेटर्स, यू डोंट सी माई क्रेडिटर. आई एम प्रिपेयरिंग माई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें आपको दिख रहा है ना कि मैं नॉर्मल धंधा कर रहा हूं. अगर नहीं पे करूंगा तो तुम बेच देना ना मेरा इन्वेंट्री, क्या प्रॉब्लम है फिर. You use your security, लेकिन एटलीस्ट in on the basis of this you can understand my worth and issue में कैश क्रेडिट so that मेरा बिजनेस ऑपरेट नहीं. ऐसा नहीं कि एक मंथ में एम्प्लॉयज को पेमेंट किया, एक मंथ में एम्प्लॉयज पेमेंट नहीं किया, ये क्या नॉनसेंस है. ऐसा तो फिर नहीं चलेगा ना बिजनेस, राइट. ओके, बैंक्स अंडरस्टैंड दैट. So all accounts should be kept within both drawing power and sanction limit at all point of time. So sanction limit total exposure है, उसके अंदर drawing power होती है जितना मैं withdraw कर सकती हूँ. At any point of time, I cannot withdraw over both the limits. The accounts which exceed that sanction limit or DP or are against unapproved securities are otherwise irregular should be brought to the notice of management or head office regularly. So ये बैंक खुद करेगा, बैंक देखेगा कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिन्होंने ड्रॉइंग पावर लिमिट ली है और दे आर इरेगुलर इन डिपॉजिटिंग मनी इन द अकाउंट, सिर्फ क्रेडिट यूज ही कर रहे हैं, कुछ 90 डेज हो गए, एक पैसा नहीं जमा किया कैश क्रेडिट अकाउंट में, ओ देन बहुत दिक्कत बात है. ठीक है. व्हाट इज बैंक्स ड्यूटी हियर, सॉरी, bank's duty here? Bank should ensure that the drawing in the working capital account are covered by the adequacy of current asset. मतलब this is where your game changing starts because something they talk about current asset. तो कुछ तो current asset का होने वाला है यहाँ पर, ठीक है. Now drawing power is required to be arrived at as based on current stock statement. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statement relied upon by bank for determining the DP should not be older than 3 months. तो ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए बोलते हैं ना क्वार्टरली. रिमेंबर अभी जस्ट आपने कारो रिवाइज किया था, उसमें क्या बोला था, क्वार्टरली स्टेटमेंट. इन क्लॉज 2 का इन्वेंट्री के सेकंड पार्ट में क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना था. तो क्यों, क्योंकि 3 महीने पुराना स्टॉक स्टेटमेंट थोड़ी लेते बैठेंगे यार, इट्स अ टू ओल्ड इन्वेंट्री. देन the outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than 3 months is deemed to be irregular. अगर 3 महीने पुराना स्टॉक स्टेटमेंट पड़ा है, उसके बाद ये लोग दे ही नहीं रहे स्टॉक स्टेटमेंट, ड्रॉइंग पावर बैंक रिवाइज ही नहीं कर पा रहा है,
देन तो इरेगुलर अकाउंट हो सकता है, प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये तो हो गई राम कहानी अबाउट दैट कंसेप्ट। व्हाट डू वी डू? So first, the stock statement, quarterly returns, other statements submitted by borrower to the bank should be scrutinized in detail. सबसे पहले आप उनका स्क्रूटनी करो अगर आप बैंक के ऑडिट में हो। The audited annual report submitted by borrower should be scrutinized properly. बैंक बोरोअर हर बार एनुअल रिपोर्ट ऑडिटेड जमा करता ही है, बैंक उसको भी स्क्रूटनाइज करना चाहिए। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ फॉर विच द ऑडिटेड accounts are prepared and submitted should be compared and the reason for deviation if any should be ascertained. So monthly stock statement of the month for which audited accounts are prepared are also needs to be submitted and should be compared and अगर कुछ भी रीजन होता है तो वो ascertain करना पड़ेगा कि क्या। बट डीपी कंप्यूट कैसे करना है इतने सारे ज्ञान के बाद में? So it needs to be ensured that drawing power is calculated as per the guidelines formulated by the board of directors of the respective bank and agreed upon by the concerned statutory auditor. मतलब अगर आप ऐसे एज एन ऑडिटर हो तो किसी भी बोरोअर का जो डीपी लिमिट है वो आपकी नजर से होके जाने ही वाला है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी टेकिंग योर अप्रूवल ऑन दैट. So special consideration should be given to proper reporting of sundry creditor for the purpose of calculating the drawing power. Okay, so we have to give proper consideration to the sundry creditor. So दो pointers तो आपको मिल गया. Then stock audit. बैंक क्या करवाएगा? बैंक is going to conduct stock audit. ठीक है, स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट बाय बैंक फॉर ऑल द अकाउंट जिनका फंड एक्सपोजर कितना है, 5 करोड़ से ज्यादा है. सो याद है वर्किंग कैपिटल लिमिट में वहां क्वार्टरली स्टेटमेंट के लिए दिया था 5 करोड़ से ज्यादा वाले वर्किंग कैपिटल लिमिट को. यहाँ पर भी बोला है कि जिनका भी एक्सपोजर वर्किंग ड्रॉइंग पावर आपने 5 करोड़ से ज्यादा दिया है, आप सिंपली एक काम करो, उनका ना स्टॉक ऑडिट करवा लो बैंक. ठीक है. ऑडिटर कैन ऑल्सो एडवाइज फॉर स्टॉक ऑडिट इन अदर केसेस. अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो मतलब कोई कोई ऐसा बोरोअर है जिसका ड्रॉइंग पावर 3 करोड़ ही है, तो ऑडिटर बोल सकता है कि नहीं नहीं अपने को लग रहा है ना ये काम करते हैं, बैंक को बोलेगा कि बैंक एक काम करो इसका स्टॉक ऑडिट करवा लो, यस उसको बोलो स्टॉक ऑडिट करके रिपोर्ट जमा कर दे. So branches should obtain the stock audit report from lead bank in the cases where the bank is not leader of the consortium of working capital. Remember कल एक कंसेप्ट पढ़ा था, बहुत सारे लोग मिलजुल करके लोन दे रहे थे. यस मैम. कंसोर्टियम वाला एडवांसेस. तो अगर ऐसा है कि ब्रांचेस क्या करेंगे, वो अगर लीड बैंक जो है वो ऑडिट नहीं करवा पा रहा है तो बाकी लोग अपना अपना स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ले लेंगे, राइट, फॉर दैट लीड ऑन बिहाफ ऑफ दैट लीड बैंक. Now, the report submitted by the stock auditor should be reviewed during the course of audit and special focus should be given to the comments made by the stock auditors on valuation of security and calculation of drawing power. अभी हम ये सब चीजें जानेंगे, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. What do you say? यस मैम. यस मैम. अभी देखो, आपको ना एवरी टाइम एक क्वेश्चन रहेगा ना. देखो आप एक चीज खुद सोचो, आप अगर बैंक हो और मैं आपके पास आऊँ और मैं बोलूं कि देखो मेरे पास ना 100 करोड़ का इन्वेंट्री है, आप मुझे 100 करोड़ का ड्राइंग पावर दे दोगे क्या? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्वेंट्री कैन यू गिव मी ₹100 crore सीसी? नो मैम. No, no. नो मैम. क्या दिक्कत है कि द मोमेंट मैंने ये 100 करोड़ का रीपेमेंट नहीं किया, सॉरी द मोमेंट मैंने सीसी लिमिट का रीपेमेंट नहीं किया 100 करोड़ का, पता चला आप स्टॉक बेचने के लिए गए और स्टॉक निकला है 70 CR का, मार्जिन. वाट लग जाएगा आपका एज अ बैंक. और Yes, ऐसा ma'am. एक ही बोरोअर तो ऐसा नहीं करेगा झोल, ऐसे बहुत सारे बोरोअर करेंगे. तो यू बैंक ऑलवेज नीड टू कीप सम मार्जिन, सिर्फ मार्जिन रखेंगे, ये मार्जिन एज अ सिक्योरिटी रखते हैं वो लोग. ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम. आपको ये कंसेप्ट समझा? पहले बताओ इतना, ये मार्जिन का छोटू सा Yes, ma'am. कंसेप्ट, क्योंकि ये आपको Yes, एग्जाम Yes, करो. सॉरी, समझा समझा. अब मुझे आप कुछ चीजें कैलकुलेट करके बताओगे, चलेगा? सपोज आपके पास में स्टॉक है कितने का, 100 सॉरी 1 CR का. ठीक है, यू हैव
डेटर्स, बुक डेट्स और डेटर्स लेस देन 90 डेज से, अभी रिसेंट वाले, सपोज आपके पास में है 80 lakhs, ठीक है। देन यू हैव क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल परचेज वाला, सपोज 30 lakhs का, ठीक है। बैंक का मार्जिन उनको चाहिए कितना? 25% ऑन स्टॉक एंड रिसीवेबल्स बोथ। कैन यू कैलकुलेट कि इस पर्टिकुलर बोरोअर का डीपी कितना होगा बैंक के हिसाब से? 1,12,50,000। इतना फास्ट? यस मैम। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट। 1.125 CR। एक सेकेंड ना, लेट मी टेक सम फिगर्स ऑन द बोर्ड। हमने क्या बोला? टोटल, 1.125। एक सेकेंड ना, टोटल करंट एसेट्स कितना है मेरे पास में? 1.8 crores, ठीक है। यस मैम। लिक्विडिटी कितनी है? 0.3 crores, मतलब 30 लाख के पास है। अच्छा अच्छा। मेरा नेट करंट एसेट कितना हुआ? मैम आपने मार्जिन में क्या लिखा है लास्ट लाइन? 25% ऑफ। स्टॉक एंड रिसीवेबल बोथ। ओके। मैम मेरा 75 lakhs। क्या बोला? सॉरी। 75 lakhs। 75 लाख डीपी आ रहा है। यस। मार्जिन कितना रखना था उसको? 25%। 5 lakhs का मार्जिन। मार्जिन आपने किसके ऊपर कैलकुलेट किया है? डेटर्स एंड स्टॉक के ऊपर है। 1 crore 5 लगा रखा है। एक सेकेंड। गाइस, डिडंट यू माइनस द, जब आपने मार्जिन कैलकुलेट किया तो डिडंट यू माइनस द सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या? मैं यस फर्स्ट टाइम मैम। ऐसे ही किया था। यस मैम। पहले ऐसे ही है। मैम स्टॉक्स और डेट मतलब स्टॉक और डेटा दोनों को अलग अलग करना है ना? नहीं, अभी हमने एक जनरल क्वेश्चन लिया था। ओके, सो आपने स्टॉक एंड डेटा, मैंने नेट करंट एसेट निकाला। अगर आपने स्टॉक का किया, ओके, सो स्टॉक का हाउ डिड यू, व्हाट अमाउंट यू टुक? 1 CR, ठीक है। फिर उसमें यस से आपने व्हाट डिड यू रिड्यूस इन द स्टॉक? 30 लाख। क्रेडिटर्स हाँ क्रेडिटर्स 30 लाख। ऑफ यस 0.30 crores। तो कितना आया आपका अमाउंट? दैट इज द अमाउंट यू पेड। 0.7। 0.70 CR, राइट। यस कितना मैम। मार्जिन है इसमें से? अभी मार्जिन आप रिड्यूस करोगे माइनस हाँ 52 पॉइंट मतलब 25% है तो 52.5 आया। 0.525 CR आया क्या? नहीं नहीं वो तो आंसर आया अच्छा, मतलब कितना ये बताओ ना, कैलकुलेशन में कितना आ रहा है मार्जिन? 17.5। 0.175 CR, मतलब हाँ रिमेनिंग 0.525 CR, करेक्ट। यस मैम। ना आपका ये क्या आया? व्हाट इज दिस? दिस इज द लेस मार्जिन स्टॉक ना, स्टॉक यस मैम स्टॉक। आफ्टर मार्जिन। देन यू हैव डेटर्स। यस मैम। टोटल डेटर्स कितने हैं आपके पास में? 80 80 80 लाख। lakhs। 80 lakhs, 0.80 CR। Do I need to reduce anything from this नो मैम। other मार्जिन than मार्जिन को margin? छोड़ दो। या मार्जिन मार्जिन को मार्जिन मार्जिन छोड़ कितना मार्जिन लेना है निकाल। मुझे? 25% तो 20 आएगा मैम। 25%। 20 lakhs। 0.20। 20 lakhs and then What is point debtors six after margin? point six. 60 lakhs।
0.6 CR. So total 1.125. 112.5. मैं मेरा my first one was correct. हाँ, अभी देखो सुनो मेरी बात। हमने क्रेडिटर्स स्टॉक में से क्यों माइनस किया पहले? परचेज कैश परचेज से कैश मतलब आउट ऑफ टोटल स्टॉक इतना क्रेडिटर अगर आपने माइनस किया था 0.70 CR आपका एक्चुअली पेइंग कैपेसिटी था। यू ओनली पेड फॉर द स्टॉक ऑफ कितना, मतलब आउट ऑफ ओनली 70 CR, 70 लाख तो 70 उतना लाख ही आपका क्रेडिट वर्दीनेस माना जाएगा। इसके लिए जितने क्रेडिटर बाकी है, मतलब 31 मार्च को तो यू डिड वट एवर डेट का आपके पास में ये डेटा होगा, उन्होंने इतना तो पेमेंट नहीं किया था ना क्रेडिटर को, मतलब इतना तो दे डिडंट हैव मतलब होल्ड और देयर कैश, राइट? मतलब कि वो इतने 30 लाख के क्रेडिटर को पे कर पाए। तो एक्चुअली दे पेड फॉर द स्टॉक ऑफ, आप ये अज्यूम करोगे कि दे कुड ओनली पे फॉर द स्टॉक ऑफ 70 लैक्स का आउट ऑफ 1 करोड़ का टोटल स्टॉक, बिकॉज 30 का अभी भी बाकी है लाख का। करेक्ट? जो ही गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं प्रियंका? नहीं ना? ओके, मैं वापस बताती हूँ। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इट सेज, कभी भी अगर देखो कैलकुलेशन मत वाइज मत जाओ। अगर बुक्स में आपको उन्होंने गिवन दिया है स्टॉक है सपोज 10 CR का, ठीक है, और आपको दिया है क्रेडिटर्स है 3 करोड़ का, मतलब अगर एट प्रेजेंट उस बोरोअर की कैपेसिटी देखी जाएगी ना जूही, तो वो उन 10 करोड़ के स्टॉक में से 3 करोड़ का लाइबिलिटी अभी भी पे नहीं किया है। तो एक्चुअल इसका कैपेसिटी कितना है था पे करने का? ओनली टिल 7 करोड़। तो आप ये 7 करोड़ के ऊपर उसको बोल सकते हो कि भाई हाँ तूने इतना पे करा ना, मैं तुझे इसके ऊपर अपना मार्जिन काटूंगा, आई विल डिडक्ट माई मार्जिन एट द रेट ऑफ 25%, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना है। एंड देन वॉट एवर इज द बैलेंस अमाउंट दैट कम्स, आई विल गिव यू दैट एज द ड्रॉइंग पावर। फिर वो तू अपना यूटिलाइज कर, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सो कितना, 7 में से 25% माइनस किया तो कितना आया? 5.25. 5.25 करोड़ 5.25 CR। सो इतना मैं तेरा ड्रॉइंग पावर दे देता हूं, देन यू गो एंड एंजॉय द लाइफ। ठीक है? सो स्टॉक में से क्रेडिटर्स आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका माइनस होता है। लेट मी सी, और मुझे इसमें से क्या बताना था आपको? ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप कैलकुलेट करो आपके आपके पास में फटाक से, ठीक है? यस वैल्यू ऑफ स्टॉक्स 1.25 करोड़, ठीक है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री 0.05 करोड़, ठीक है? डेटर्स 0.50 करोड़, 50 लाख के डेटर्स है आपके पास में, ठीक है? आउट ऑफ above rupees 10 lakh debtors were outstanding for more than 90 days. And what is 90 days? Why 90 days is relevant? Because 90 days was the credit period allowed to customers. Yes? Yes, ma'am. All right. ठीक है? Value of creditors for goods 0.50 crores. Calculate DP. Ma'am, margin. Margin I didn't give. Okay. Now take margin on stock. Bank like to keep a margin on stock of 25% and margin on debtor.
आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है डीपी डजेंट मैटर, आप लॉजिकली सोचो किस आइटम का क्या एडजस्टमेंट होगा एंड कीप द आंसर्स विद यू ओनली, डोंट टेल द आंसर, लेट एवरीवन कैलकुलेट गाइस। Done, ma'am. डन मैम। लेट एवरीवन कंप्लीट है ना। गुड। Guys, those who attended the YouTube last session में मेरा voice is coming was coming properly only क्या? There? क्लियर कीजिए। अच्छा ओके। मैम हाँ, मैम बैक डेट्स का कोई इफेक्ट है क्या डेटर्स में? आप लॉजिकली सोचो क्या होगा, क्या होना चाहिए। अभी आंसर मत मैम करना, सिर्फ बताना, सिर्फ सोचना। आप लॉजिकली सोचो किसी को ड्राइंग पावर मिलती है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सपोज आपके 5 सब्जेक्ट हैं एंड यू फुलफिल द 5 ऑल द 5 सब्जेक्ट्स का होमवर्क, तो आपको 500 रुपीज पॉकेट मनी मिलेगी फॉर दिस वीक। उसमें से आपने 2 सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट किए, शुड आई गिव यू 500? 3 पूरे कंप्लीट किए, दे दूं क्या 500 रुपए? फिर वर्दीनेस के हिसाब से। डन एवरीवन? यस मैम। प्रियंका, जूही, विवेक? ठीक है, यस दी। आंसर मत बताने का कोई भी। किया क्या था आपने? देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टॉक कितने का था अपने पास में? 1.25 करोड़, करेक्ट? इतना ही था। यस बस मैम। इसमें से गुड्स, कुछ ऑब्सोलीट गुड्स थे। डू यू थिंक किसी ने कचड़ा माल रखा हुआ है और उसके बदले में बैंक उसको ड्राइंग पावर दे देगा? नो मैम। No. सवाल ही नहीं। 0.05 करोड़ माइनस कितना आएगा? 1.2 करोड़। 2 करोड़। ठीक है। नाउ अभी मुझे मालूम है कि इसमें से कुछ स्टॉक का पैसा तो इसने दिया ही नहीं है। कितना स्टॉक का पेमेंट नहीं किया था? क्रेडिटर कितना था? 0.5। 0.5. 0.5 बचा 0.7 करोड़। करोड़। इतना मेरा वैल्यू ऑफ पेड स्टॉक बचा। बैंक ने बोला यार 25% पागल लॉस। थोड़ी हूं मैं कि वैल्यू ऑफ पेड स्टॉक का पूरा मार्जिन दे दूं, मैं पूरा ड्राइंग पावर दे दूं। आई विल कीप सम मार्जिन, नो। कितना होगा, कितना मार्जिन रखना था उसको? 25। 25%। कितना हुआ? 70 का, सॉरी, 0.17. 0.175 0.175 करोड़। 0.175 CR 0.525 डीपी करोड़। बेस्ड ऑन स्टॉक कितना हो, स्टॉक कितना हो गया डीपी? 525 525 52 लाख का हुआ। 0.525 करोड़। 5. करोड़। ये बेस्ड ऑन स्टॉक हो गया। अभी इस भाई साहब के पास में कुछ डेटर्स वगैरह था क्या? यस। Yes, ma'am. 0.5 करोड़। 0.5 मतलब 50 लाख के डेटर्स थे इसमें, बराबर। हाँ। Out of कुछ 0, डेटर्स out of उसको 0.1. 91 से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या बैंक बोल रहा मैं नहीं रिस्क ले रहा भाई, पेमेंट आएगा नहीं आएगा अपने को क्या, हटाओ इसको यहाँ से। मोर देन 90 डेज वाला, क्योंकि क्रेडिट पीरियड जितना था ना उतना तक वेट करता है बैंक। क्रेडिट पीरियड के बियॉन्ड क्यों वेट करेगा?
आपका क्रेडिट वर्दीनेस देखने। आपने ही बोला था 90 डेज में पेमेंट क्रेडिट करने के लिए सारे डेटास को आ जाना चाहिए था ना। बियॉन्ड 90 डेज से मतलब आए तो बैंक बैंक रिस्क ही नहीं लेता। बैंक बोलता हटाओ मैं नहीं लूंगा उतना ये करके। कितना बचा? जीरो 0.40 0.4 जीरो सीआर का डेटर्स बचा इसके पास में। मार्जिन कितना रखने वाला था ये डेटर्स? अभी मेरे को 40%। 3 महीने से पेमेंट नहीं आया 10 लाख का, तो बैंक बोला नहीं नहीं नहीं, डेटर पे मुझे 25% का मार्जिन रखना ही नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट इट दिस मच। बोला मैं 40% से सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, मतलब अपना टोटल 25 वर्सेस 40 आप देखो ना। स्टॉक पे फिर भी भरोसा कर रहा था तो कम मार्जिन रखा, डेटर पे तो सीधे 40% ही बोल दिया उसने। कितना हो गया? 0.16 2.16 ठीक है, and balance is 0.24 0.2। 0.24 कितना आया टोटल डीपी? 0.765 0.765 0.765 लाख का 0.765। हाँ विवेक, yes 70 लाख 10 हजार। बराबर। yes ma'am एकदम फुल हिंदी क्लास का उपयोग कर रहे हैं अपन। मैंने भी बहुत मेरी हिंदी अप्रूव की है। बट 75 के बाद क्या बोलते हैं इसको? 76, 76 लाख ना? 73 76 73 लाख। लाख पहले ना मैं अपने सिबलिंग्स के साथ में से कंपटीशन करती थी कि 1 से लेकर 100 तक हिंदी में बोल के बताओ। और फास्ट ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, एकदम फास्ट ऐसा ये करके कि कौन बोल पाता है। मैम मैं 30 तक बोल सकती हूँ, उसके बाद बीच का ही आता है। हाँ वो चलो ये बढ़िया। अभी कैसा ज्यादातर लग लोग रहा है? 79 और 89 क्या? हाँ कुछ कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स है ना, मैम जैसे 79 बावन। और 89 हाँ 89 में नवासी, एंड 79 को क्या बोलते हैं? 79 उन्यासी। 79 उन्यासी 79 अस्सी, और बहुत अलग 79 डायरेक्शन सुनो अभी क्लास का। 69 में से 69 आर वी कूल सो फार? अब एवरीवन यू अंडरस्टूड लॉजिकली, आप समझो कि क्या है वो ज्ञान जो लिखा है बैंक में वो ठीक है। बट किसी को पैसा देने के पहले आप नहीं उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे या नहीं चेक करोगे? ठीक है, अभी सुनो एक और क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लो, आंसर मत बताना। स्टॉक है 50,000 का, डेटर्स है 45,000 के, डेटर्स older than 3 months 5,000। ठीक है, क्रेडिटर्स 15,000। सैंक्शन लिमिट कितना दिया है इसको भाई साहब को? 45,000 का। मार्जिन ऑन स्टॉक उसको चाहिए कितना? 20%। डेटर्स पे हमेशा सबको शक रहता है। डेटर्स मार्जिन ही वांट टू कीप, बैंक वांट टू कीप एट 50%। कैलकुलेट डीपी। done डन मैम। एकदम ऐसा उत्साह में आकर के बोल मत देना आंसर। ओके मैम। फिजिकल क्लासेस ही याद आ गई। फिजिकल क्लासेस में से ही होता था। Anyone who is just solving on Calci? I want the screen. I want the photo of all of your answers in the group. हाँ? Sure. अभी। शुड आई पोस्ट? Yes. नहीं मतलब Okay. not this answer, the previous ones. हाँ ओके मैम, आई पोस्ट। Sometimes some students calculate answer so well in the Calci, ठीक है, और फिर ऐसा कॉपी पेस्ट करने में बुक में एक आध जीरो गायब करके आते हैं, फिर आईसीआई उसको ऐसा कट करके जीरो कर देते हैं वहां पर। कॉपी पेस्ट मतलब देख के भी करेक्ट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर इनटू द एग्जाम हॉल। एमसीक्यू की आदत है ना मैम। एमसीक्यू में
ये मैम आगे ने हो गया है तो डाला। ये सॉल्व करो। एक सेकंड ना, और एक ही सेकंड है। मैम वो आपने क्या लिखा है, कौन सा लिमिट? सैंक्शन लिमिट ना, नहीं नहीं, क्वेश्चन दूसरा वाला। सीसी लिमिट, क्रैश क्रेडिट लिमिट। CC अच्छा ओके। फर्स्ट वाला डन एवरीवन? यस मैम। पक्का? कितना आया फर्स्ट वाले का डीपी? 45,000। 45,000 सैंक्शन लिमिट। 45,000. मैं तो मैम देखो, आया तो 48 है, पर अप टू बट 45। 45 आएगा बिकॉज आपके 48 कैलकुलेशन में आया। डीपी आया होगा 48,000। 48, यस मैम 48 आया है। उस बंदे का सैंक्शन लिमिट ही 45,000 है। कैन ही विड्रॉ ओवर द सैंक्शन लिमिट? द आंसर इज नो। नो सो मैम। ब्रिंग इट डाउन टू 45,000। सोचो जिस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया होगा, जितने लोग 48,000 लिखकर आएंगे डीपी में, उनको कैसा, ओ माय गॉड, शुड आई जस्ट किल माई सेल्फ? डोंट किल योरसेल्फ फॉर सच सिली थिंग्स इन लाइफ। डन एवरीवन? नेक्स्ट वाला करेंगे। यस मैम। यस। डन मैम। डन मैम। शोएब कर रहे हो ना कैलकुलेट? शोएब, गीता, घनश्याम, Yes, ma'am. केशव, Yes, ma'am. मानवी, Yes, ma'am. एवरीवन डन? यस मैम। यस मैम। लेट एवरीवन कंफर्म। जिसका हो गया वो एसएमए और एनपीए रिक्वायरमेंट पढ़ो बैठ करके थोड़ा सा। यस। रिवाइज द एसएमए रिक्वायरमेंट एंड एनपीए रिक्वायरमेंट्स। मैम ये वाले कैलकुलेशन का भी फोटो डालना है ग्रुप में। अभी नहीं, रुकना, लास्ट वाला नहीं, इसके पहले पहले वाले सारे डाल दो। डन एवरीवन? पहले ये बताओ फटाक से, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? Yes, ma'am. कितना है डीपी? 3 करोड़। 3 करोड़। एनीवन गॉट अ डिफरेंट आंसर? नो मैम. Okay, tell me one thing. No. What do you guys do with this damage good of 1 crore? मैम और स्टॉक में से माइनस किया। सबने किया? No. क्योंकि बैंक Yes, क्यों ma'am. देगा Yes, उसके ma'am. लिए ड्राइंग पावर? 6 महीने से ज्यादा डेटर्स पड़े हुए 50 लाख के, क्या करोगे? डेटर्स में से माइनस। डेटर्स में से Better माइनस कर दिया। मतलब. फिर इंडिविजुअली आपने मार्जिन, क्योंकि अलग अलग था तो मार्जिन अलग अलग करके फिर आपने उसका डीपी लिमिट निकाल लिया, बाद में सम कर दिया होगा, 3 CR आ गया होगा। ब्यूटीफुल। नो, आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। मैम ये क्वेश्चन में 6 मंथ से ज्यादा दिया गया है, पर इज इट कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है क्या मंथ्स का? ओवर इज 90 इट डेज। फिक्स? ओवर 90 डेज। ओके. अभी टॉपिक बोला वो बुक में कहाँ पे है आपकी बुक में? हाँ सॉरी,
आपने बोला ना वो टॉपिक रिवाइज करना, वो आपकी बुक में कहाँ पे है वो? रुको एक सेकंड ना, वो देखना, एक ही सेकंड ना, मैं ढूंढ के देती हूँ, मेरे को उसके पहले एक चीज करके दो। सीसी लिमिट कितना है? 1 CR, ठीक है। ड्रॉइंग पावर 80 लाख, ठीक है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इज इक्वल टू 75 लाख। इंटरेस्ट on outstanding balance is equal to rupees 3.5 lakh. Total credit for the quarter is equal to rupees 2.5 lakh. How will you report this account? मतलब आपको ये आंसर करने के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी का ऑडिट करना आना चाहिए। अरे क्या हुआ? व्हाट वाज, वेयर डिड द फर्स्ट लाइन गो? हाँ, ओवरड्राफ्ट वाला पोर्शन देखोगे क्या बुक्स में? एक सेकंड, ओवरड्राफ्ट का या सीसी लिमिट का ऑडिट कैसे कर, ऑडिट ऑफ एडवांसेस में ना ओवरड्राफ्ट एंड सीसी लिमिट का ऑडिट कैसे करते हैं वो चेक करो। Come to this topic, guys. In your everyone in your notes, find out the prudential norms on income. Yes, sir. Prudential norms on income, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस, ऐसा पूरा फुल टॉपिक है आपके पास में, यस मैम। ठीक है। गॉट इट गाइस? हाँ, Yes, ma'am. अभी सुनो। हाउ डू यू से, अभी आपको मालूम है कि बैंक जब भी एडवांसेस देता है, गाइज आई एम नॉट स्ट्रीमिंग दिस इज जस्ट अवर क्लास, दिस इज ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल क्लास, ठीक है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग फिगर इटिंग आउट आंसर्स, क्योंकि वन शॉट में मुझे ऑडिट ऑफ बैंक ऐसे उड़ाना नहीं है इसके लिए, ठीक है। अभी सुनो, बैंक ने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिया, बैंक उसको अपना असेट कंसिडर करेगा। कुछ दिनों बाद वो बंदा रोने लगेगा, नहीं नहीं पेमेंट नहीं करूंगा, ये वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। That is an indication that bank should classify that into a non-performing asset. Once it will be classified into non-performing asset, तब फिर बैंक को सिग्नल जाएगा, ऊपर आरबीआई को सिग्नल जाएगा कि ये बैंक के पास में प्रॉब्लमेटिक एडवांसेस है। आरबीआई सीधे बोलता है ऐसे चीजों के लिए आप प्रोविजन ले लो, मैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स टाइम टू टाइम में सर्कुलर में आके चेंजेस भी कर दूंगा, मैं आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स दे देता हूं फॉर योर इनकम रिकॉग्निशन। अभी क्या बोलता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स? बोलता है कि किसी भी असेट को एनपीए बोलने के लिए आप देखो वेदर दैट असेट स्टॉप्स, सीजेस और स्टॉप्स टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। यस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक? मतलब हम इनकम जनरेट उससे कोई करके इनकम नहीं आनी दी बंद हो जाती है। मतलब जानना कोई उस इंटरेस्ट एडवांस के अगेंस्ट में इनकम आना आना मतलब कौन सा इनकम आने वाला था इसको?
Interest income. Interest. इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। An instrument. So what they are saying is कि NPA, it ceases to generate income for the bank or it remains as out of order. But what is out of order? Out of order is an account is treated as out of order if the total outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or drawing power अगर it is a working capital loan, ठीक है? So that outstanding amount remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power, or in case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit and drawing power, but there are no credit continuously for a period of 90 days as on the date of balance sheet, or the credits are there but they are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts will be treated as out of order. Are we clear, everyone? Yes, ma'am. Did you get this into your prudential norms? Very. Yes, ma'am. मैम उसके अंदर ना जस्ट अ सेकेंड ना, सॉरी एक ही सेकेंड ना डियर, I think I don't know why but I miss a line over there in the notes. Give me a moment, everyone. I think you have that in your notes but मुझे just यहाँ पर ऐड करने दो. मैं क्या बोल रही हूँ, प्रूडेंशियल नॉर्म क्या बोलते हैं कि किसी भी असेट को एनपीए बोलने के लिए, हाँ बोलो ना, आप क्या बोल रहे थे? मैम मैं बोल रही थी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, वो अगर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा में है तो आउट ऑफ ऑर्डर ना। एंड मैम ये तीन में से कोई भी एक भी हो गया तो भी इट इज आउट ऑफ ऑर्डर ना। हाँ हाँ यस, बट देखो आप किसी, यू आर राइट. सो एनपीए में हम क्या बोलते हैं, एक एडवांस कैन बी क्लासिफाइड एज एनपीए कब? ये 4 केसेस में, ठीक है? यू माइट हैव ऑलरेडी दिस इन योर नोट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. इफ इट सीजेस टू जनरेट इनकम, तो अगर आपको स्क्रिबलिंग करनी है तो आप स्क्रिबल करो बिकॉज इट विल हेल्प यू राइट इन द एग्जाम. और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल remain overdue for a period of 90 days. बट किसके केस में 90 डेज वाला कंडीशन किसके केस में है? फॉर बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड फॉर टर्म लोन, Terms. फॉर टर्म लोन, ठीक है? देन थर्ड, an account remains out of order in respect of Overdraft and cash credit. overdraft and cash, Yes. ठीक है? या फिर bills remain overdue for a period of more than 90 days in case of bills discounted or bills purchased. Do you guys remember your 11th or 12th class knowledge about the bill discounting, bill purchase? Yes, ma'am. अल्टीमेट कस्टमर फिर किसको पेमेंट करता है? Bank. Bank. बैंक को. सो बैंक, जो पर्सन हुआ सेल द मटेरियल, बैंक उसको जल्दी डिस्काउंट करके या उसका बिल परचेज करके उसको पैसा दे देता है. वो बंदा will have his life क्योंकि उसको बिजनेस करना है. Now बैंक इज गोइंग टू अल्टीमेटली रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर. अभी सुनो, ये सारे केस में आपको दो जगह 90 डेज का कंडीशन याद रखना है, ठीक है? बट मुझे एक बात बताओगे क्या, सीसी लिमिट में आउट ऑफ ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन कि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है? व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ ऑर्डर?
when the outstanding balance is continuously above the sanction limit or drawing power. अभी देखो, how do I go back? So outstanding amount under cash credit facility is overdue that means not paid on date fixed by bank. हर बैंक अपने हिसाब से ओवरड्यू में अपने कस्टमर को बताता है भाई तुझे इतने इतने दिन पे करना है अमाउंट, राइट? ऐसा नहीं कि तू कैश क्रेडिट कितना भी ले ले और यू नेवर रीपे, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको इतने दिन पे पे करना पड़ेगा. और एल्स if there are no credits, if there are no credits continuously For the 90 days. for 90 days as on बैलेंस शीट डेट, ठीक है? या फिर credits Credits are there, not enough not enough to cover the interest liability. to cover interest debited in same period. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके साथ क्या हुआ? आपने किसी असेट को क्लासिफाई किया एनपीए, तो आप कब कर सकते हो एनपीए? जब वो असेट आपके लिए क्या बन जाता है, इट स्टॉप्स टू जनरेट इनकम फॉर यू, ठीक है? अगर टर्म लोन में आप कब बोलोगे कि वो असेट आपके लिए एनपीए बन गया है? जब इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है, उसके ड्यू डेट से. देन इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आप उसको कब बोलोगे वो एनपीए बन गया? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया. व्हाट डज इट मीन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया? मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो ओवरड्यू है. किससे ओवरड्यू? जो भी बैंक ने डेट फिक्स की है उससे ओवरड्यू. या फिर इफ देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑन बैलेंस शीट डेट, या फिर क्रेडिट हुआ है बट इट इज नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट. अभी बच्चे ये वाला चीज ठीक से पढ़ के नहीं जाते. क्रेडिट हुआ है अकाउंट Yes, में ma'am. बट इट इज नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक इनटू दैट अकाउंट. और अगर बिल परचेज और बिल डिस्काउंटेड केस है तो ओवरड्यू इज मोर देन 90 डेज. अगर ये केसेस होते हैं तो आप प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से उस अकाउंट को क्या कर सकते हो? यू क्लासिफाई देम इनटू एनपीए. कैन वी गो बैक टू अवर क्वेश्चन एंड नाउ यू टेल मी हाउ विल यू ट्रीट दिस अकाउंट एज? Out of order. Because the credits are available but not enough that the interest is बट debited. आउट ऑफ ऑर्डर होने के लिए बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बाकी कंडीशन में कोई क्या नहीं है। कंडीशन था? मैम फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई हो रहा है ना? टोटल सीसी लिमिट कितना था? Once CR. एवरीवन और 1 1 CR. CR. 1 CR. ड्रॉइंग पावर 80 लाख. 80 lakh. आउटस्टैंडिंग अमाउंट एवरीवन 75 lakh. 75 लाख. क्या उसने अपने ड्रॉइंग पावर से ज्यादा विड्रॉ किया है? नहीं मैम. No ma'am. ठीक है. आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमको सिर्फ मालूम है कि इतना है. इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ था उस पीरियड के लिए? बैंक ने बोला था कि हमको इंटरेस्ट चाहिए इसके ऊपर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 3.5 लाख. 2.5 lakh. एंटिटी ने कितना जमा किया अपने अकाउंट में? 2.5 lakhs. टोटल क्रेडिट किया 2.5 lakhs ओनली. Which is 1 not lakh enough. interest pending है. So you understand what is the condition not satisfied in case of cash credit? Last condition. Out of order. ऐसा क्वेश्चन में तो हमको कंडीशन गिवन नहीं है दैट अमाउंट रिमेन आउटस्टैंडिंग ओवर द ड्यू डेट, ऐसा नहीं, हमको नहीं मालूम है. बट ये जरूर, एंड उन्होंने बोला इफ देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज. अभी ये भी नहीं मालूम है ना ये, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या बोला कि टोटल क्रेडिट है 2.5 लाख का. तो ये दोनों कंडीशन की वजह से तो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो रहा है. बट ये हो रहा है क्या? क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड फॉर सच पीरियड. Yes ma'am. 3.5 की जगह ओनली 2.5 का लैक्स का ही क्रेडिट हुआ है. यस. Yes तो ma'am. शॉर्ट क्रेडिट है उसके अकाउंट में, तो फिर उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल Yes सकते हैं. ma'am. यस मैम. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? प्रियंका, जूही, विवेक, नाउ शोएब, मैम आई हैव अ डाउट. बोलना. और जो फर्स्ट कंडीशन Yes, है ma'am. कि
outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or drawing power. तो हाँ, ये मैं फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, वो ओवरड्यू नहीं है ना डियर, ओवरड्यू कहाँ बोला है? तो क्योंकि Outs- बिकॉज हाँ 80 लाख का है और हमने सिर्फ 75 लाख किया, इसके लिए फर्स्ट नहीं हो रहा है ना सेटिस्फाई, हाँ करेक्ट। तो सेकंड हो रहा है ना सेटिस्फाई फिर। सेकंड मतलब ओनली दिस वन ना। अब मतलब a bill remains overdue for a period of more than 90 days in case, वो वाला, एक सेकंड मैम, वन कौन सेकंड। से वाले में बोल रहे हो आप? तो in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, ये वाला condition। एक सेकंड ना, मैं आई गो टू पोटेंशियल नॉर्म। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर, ऐसा तो था ही नहीं अपने साथ में, राइट? हाँ हाँ मैम। तो ये तो उसने नहीं डिफॉल्ट किया इसका। देन in excess of outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit but there are no credit outstanding for 90 days as on the balance sheet date। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि उसने कुछ 90 हाँ, days का क्रेडिट नहीं किया, इनफैक्ट उसने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट का 2.5 lakhs का, यस यस यस। अकाउंट में उतना इंटरेस्ट तो उसने पे किया है, बट द तो ओनली थर्ड, थिंग इज दैट क्रेडिट इज नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट ओके। क्रेडिटेड इन दैट अमाउंट, तो फिर वो उसको आपने बोल दिया कि आउट ऑफ ऑर्डर है, एनपीए क्लासिफाई करो। ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऐसे वो सिनेरियो देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि क्या ये एनपीए बन सकता है, आप बताओ। एनपीए की आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, देखो आप सुनो मेरी बात, आपने ये क्वेश्चन कहां से पढ़ना चालू किया था कि एक एडवांस को व्हेन एन एडवांस विल बी कॉल्ड एज एनपीए, NPA. उसके ओके। लिए आपने बोला कि प्राइमरी कंडीशन क्या है, व्हेन इट स्टॉप जनरेटिंग इनकम। तो टर्म लोन के केस में वो स्टॉप जनरेटिंग इनकम कब होता है, जब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ओवरड्यू के लिमिट में, सॉरी ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट के लिमिट में व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर। तो एक बार आउट ऑफ ऑर्डर आपने बोल दिया उसको, मतलब क्या उस असेट को अभी एनपीए क्लासिफाई कर सकते हैं? यस। यस। या अगर बिल्स डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेना, अगर ओवरड्यू मोर देन 90 डेज है तो। तो मैम अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले हम लोग को ये एनपीए के 4 पॉइंट्स लिखना है, फिर आउट ऑफ ऑर्डर के 3 पॉइंट्स लिखना है, और फिर कंक्लूजन लिखना है। यस यस यस। ओके मैम। मतलब ये दोनों, फिर अगर आपको आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, डिफॉल्ट रूल व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, व्हेन इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। टर्म लोन और ये दोनों मेंशन मत करना क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, वो क्वेश्चन वाज अबाउट द सीसी लिमिट, तो अपन ये वाला क्यों मेंशन करेंगे ना, ये तो बिल्स डिस्काउंटिंग एंड टर्म लोन के लिए है। मैम फिर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आया नहीं। नहीं नहीं, ओके ओके मैम, थैंक यू। जो ही क्लियर हुआ? पक्का? प्रियंका, विजन, यस मैम। तुम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हो मुझे। शोएब, मैम एक बार आउट ऑफ ऑर्डर वाला दिखा दो ना। क्या क्या मानवी? आउट ऑफ ऑर्डर वाला दिखा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। हाँ एक सेकंड ना डियर। केशव, ओके गुड। ऐसा बनेगा क्या लेने के लिए, या फिर और ये करो यस मैम, यस मैम हो गया। ना? यस मैम हो गया। ओके। थैंक यू मैम। I wanted to tell you some more things. ओके, बट क्या होता है ना, सुनो मेरी बात, अभी ना आपके बुक्स में 2 मिनट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। किसी भी ना एडवांस अकाउंट को ना एनपीए बोलने के पहले एक ना अर्ली वार्निंग होनी चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ तो एक्शन ले पाओ कि यस उस अकाउंट का कुछ लग तो रहा है कि ये बोरोवर कुछ बड़ा राड़ा करने वाला लाइफ में। यस, तो कुछ अर्ली वार्निंग होना चाहिए। ये अर्ली वार्निंग के लिए बैंक ने एक सिस्टम बनाया है, किसका? स्पेशल मेंशन Account. अकाउंट्स।
ये पेज 10.11 पे जो मेरा बुक यूज कर रहा है, आप यहां पर यूज करोगे क्या एसएमए डिफाइन करने के लिए ये स्पेस गाइस? 10.11 पे इस पेज पे, ठीक है। अभी स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है? अर्ली वार्निंग कि भाई ये बंदा कांड करेगा, ये बोरोवर, इसका एसेट अपने को एनपीए में डालना पड़ेगा, इससे पहले काम करते हैं ना, उस अकाउंट को अपन उठा करके एसएमए में क्लासिफाई करते हैं। सो एसएमएज आर दोज अकाउंट्स, अगर आपको एग्जाम में इसका छोटा सा नोट लिखने के लिए आया तो एसएमएज आर दोज अकाउंट विच आर रिजल्टिंग साइंस ऑफ incipient stress leading to possibility that borrower may default on obligation। मतलब इट्स अ साइन, इंसिपिएंट स्ट्रेस, आपको पता चल रहा है कि वो अकाउंट शायद एनपीए जाने की राह पर है। सो एवरी अकाउंट ओवर ड्यू जब भी होता है ना, एवरी अकाउंट जब ओवर ड्यू होता है ना, तो 0 डे से लेकर के 30 डेज तक यू डोंट डू एनीथिंग, यू क्लासिफाई दैट एज एसएमए जीरो। एसएमए जीरो मतलब सिग्नल आज गया है बैंक के पास में कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिग्नल आ चुका है, ठीक है। बट बैंक उसको सिर्फ समझ के रखेगा कि हाँ बॉस कुछ तो प्रॉब्लम है। ओवर ड्यू हुआ, आप समझ रहे हो, ये सब ओवर ड्यू शो कर रही हूं मैं यहां पर। ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट निकल चुकी है, 30 दिन भी हो गए, 31 डेज प्लस हो गए, 31 से अगर 60 डेज हुआ तो आप उसको क्लासिफाई करोगे एसएमए 1 कैटेगरी में। अगर ओवर ड्यू 61 से 90 डेज हुआ तो आप उसको क्लासिफाई करोगे एसएमए 2 कैटेगरी में। एंड 90 डेज वाला का तो हाल आपको मालूम ही है, फिर क्या करना रहता है, एनपी। मैम मेरी बुक में तो एसएमए 1 2 कुछ दिया ही नहीं है। वो 0 से 30 डेज का कुछ बोलते नहीं है, बट एसएमए 1 भी नहीं दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मॉड्यूल में है मैम, क्या क्या? मॉड्यूल में है। ये लिख लो, एवरीवन नोट दिस डाउन, ये सिर्फ याद रखो कि अगर उन्होंने स्पेशल मेंशन अकाउंट पूछा तो अपने को इतना लिखना आना चाहिए, उससे ज्यादा इसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। यस मैम। लॉजिकली अंडरस्टूड, सी आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग दैट आई हैव नॉट टॉट इन दैट प्रीवियस वाला सेशन अपना, और ये आप लिख लिख के कर रहे हो, आपको सच में दोबारा इतना देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अभी लर्न कर लो आप क्या पढ़ रहे हो ना। इसके बाद वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इज टू प्रीशियस फॉर योर एग्जाम नॉलेज, ठीक है। एनी गेसेस क्या पढ़ने वाले? कैटेगरीज ऑफ एनपीए। कैटेगरीज ऑफ एनपीए। एनपीए कैटेगरीज ऑफ एनपीए बोलते हैं उसको, या फिर असेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाउटफुल वो सब ना। दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर असेट क्लासिफिकेशन। डन गाइस, दिस इज डन। यस मैम। हाँ, ओके, सो दिस इज विच पार्ट द बॉक्स वन, क्या केशव, आई टेल यू। सो एक एडवांस को एनपीए जाने के पहले देर इज अ सिस्टम ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। व्हाट इज दो सिस्टम? सिस्टम मींस एंड वेयर, अरे यार, स्पेशल मेंशन accounts. These are those accounts which are resulting signs of incipient stress leading to possibility that borrower may default on obligation. Zero से 30 days SMA 0, बट स्ट्रेस का सिग्नल आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब आपके लाइफ में जो आप पढ़ोगे ये आपको सीए फाइनल तक काम आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लो, एक बार में ही खत्म करो उसको, ठीक है। असेट
क्लासिफिकेशन, हर एक अकाउंट को ना प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना पड़ता है। इनटू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, लॉस असेट। या फिर लॉस असेट। ऐसे स्टैंडर्ड असेट जहां जहां कोई भी साइन ऑफ प्रॉब्लम आया नहीं है, अच्छे बच्चे लोन लेते हैं, बराबर टाइम पे रीपेमेंट, बराबर टाइम पे इंटरेस्ट कर रहे हैं, कोई पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एंड नो रिस्क अदर देन नॉर्मल रिस्क। ठीक है। फिर देखो, अब बैंक है, बैंक को इंडिया का बैकबोन ऐसे, इकोनॉमी का बैकबोन ऐसे नहीं बोला जाता है। बैंक सिंपल बोलता है, आरबीआई सिंपल बोलता है, स्टैंडर्ड असेट है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया है, फिर भी आप थोड़ा सा रिस्क मान के चलो। एंड जैसे आप डेटर्स में प्रोविजन फॉर बेड डेट लेते हो, इनके लिए भी प्रोविजनिंग करके रखो आप। ठीक है। कितना प्रोविजन कर सकते हैं अपन? 15%। ए, स्टैंडर्ड असेट पे 15% प्रोविजन कहां दिया है ये? 0.4। 0.40%। अरे रिस्क ही नहीं है इतना बड़ा, कभी उस अकाउंट में बंदे ने प्रॉब्लम नहीं किया, बराबर टाइम पे कर रहा है, हम क्यों उसको 15% प्रोविजन लेंगे? बैंक ने बोला प्रोविजन फॉर बेड डेट लेना है, डाउटफुल डेट लेना है, आरबीआई ने बोला आप 0.40% का प्रोविजन ले सकते हो। यस। बट प्रॉब्लम आता है ये वाले बच्चों का, सब स्टैंडर्ड असेट विच हैज बिकम एनपीए, कब तक के लिए? लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने तक के पीरियड का ही एनपीए है। एनपीए बने हुए उसकी उम्र ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन एनपीए तो है ना बॉस। ये इसका कितना प्रोविजन sir. लेना है घनश्याम? 15%। 15% है। करेक्ट। Yes. अब आते हैं और प्रॉब्लमेटिक लोग लाइफ में। कौन? जो एनपीए होके भी उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है अभी, विच रिमेन इन सब स्टैंडर्ड असेट कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ कितना दिन? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितने दिन? 12 बोलो। 12 months 12 months 12 months 12 मंथ्स। अभी ना आप क्या करो, प्रोविजनिंग करने के लिए ना उनको और टुकड़ों में बांट दो। प्रोविजनिंग करनी है ना आपको, फाइंड आउट करो कि डाउटफुल असेट में से अनसिक्योर्ड वाले लोग कितने हैं। कोई सिक्योर्ड पोर्शन ही नहीं है उनका, अनसिक्योर्ड, कुछ सिक्योरिटी नहीं है आपके पास में, पैसा गया तो डूब जाएगा। एंड कितना सिक्योर्ड पोर्शन है, मतलब ये तो मालूम है कुछ ना कुछ तो रिकवर होगा। ठीक है। टेल मी, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितना प्रोविजन लेना चाहिए? 100%। 100%। बिल्कुल, आपके जीवन में कोई सुख है ही नहीं ऐसे अकाउंट्स को रख करके, तुरंत राइट ऑफ 100% प्रोविजन। बट अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड। 3 पार्ट्स में बांटो। पहली बात तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 मंथ्स या उससे ज्यादा हो गए हैं, एंड डाउटफुल रहते हुए, डाउटफुल अकाउंट में आने के बाद में उनका लाइफ कितना है? अप टू 1 1 year
ईयर। डाउटफुल कैटेगरी में आने के बाद में उनका लाइफ कितना है? अप टू 1 ईयर। कितना प्रोविजन लेंगे अपन इसके लिए? 25%. 25%. डाउटफुल में आने के बाद में उनका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो गया, बट अप टू Up to 3 years. 3 Up to ईयर्स। 3 years. कितना प्रोविजन लेना 40. इसके लिए? 40%. 40%। एंड अगर बहुत उससे भी डेंजरस सिचुएशन, डाउटफुल More than कैटेगरी three. में रहते हुए ओवर 3 ईयर्स हो गया, अब क्या करें? 100%. 100%. 100%. लॉस असेट से आपको कोई प्यार नहीं है, वो ऑलरेडी आपके जीवन में राइट ऑफ हो चुका है। 100% ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, बहुत सुंदर बात है। नहीं किया है, 100% प्रोविजन ले लो। यस रिद्धि। मैम आपने बोला डाउटफुल कैटेगरी में आने के बाद 1 ईयर, मतलब हम्म। तो ऑलरेडी अगर 1 ईयर हो 12 मंथ से ज्यादा हुआ है तो डाउटफुल कैटेगरी में आता है, और हाँ, आने के बाद 1 ईयर के बाद तक रहेगा तो 25%। 25%। यस। तो टोटल स्टार्टिंग से देखे तो 2 ईयर्स वैसा ना? आउटस्टैंडिंग, हाँ। ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि स्टार्टिंग से तो 15% आप वैसे भी ले रहे थे उसको, आउटस्टैंडिंग होने के बाद, मतलब सॉरी, लेस देन 12 मंथ्स के कैटेगरी में आप ऑलरेडी 15% प्रोविजन तो ऑलरेडी ले रहे थे उसका, ओ यस। एनपीए बनने के बाद में। हाँ हाँ। एनपीए बनने से लेकर के अपन काउंट करते हैं वैसा। यस मैम। आपको अभी सुनो, इसके ना एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही क्लियर देते, दे विल गिव यू द क्लियर क्वेश्चन बाय डिफाइनिंग कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन सा सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस असेट है, किस कैटेगरी का है। द ओनली गेम फॉर यू ओवर हियर इज टू रिमेंबर द परसेंटेजेस एंड पीरियड, जिसमें आपको खुद ही एफर्ट मार करके याद करना है। सो वाई टू वेट? वाई डोंट यू लर्न इट नाउ ओनली? यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, यू सॉल्व इट, यू लर्न इट नाउ ओनली ना, ताकि खत्म करोगे फिर आपको। क्योंकि डीपी कैलकुलेशन और वन ऑफ द कैलकुलेशन वाला थिंग जो आपको आता है, एक ये आएगा आपके एग्जाम में। एसएमए अकाउंट में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। Yes, yes, Jahan, I'll do that. मैम आपने ग्रुप में देखा मेरा? आपने मैसेज किया ग्रुप में? वो आपने फोटो डालने बोला था ना? अच्छा हाँ, डाला ना, हाँ। अरे यार, आई कीप द फोन थोड़ा सा आगे, फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे। आई जस्ट सी इट। अरे मस्त। प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके आना, रिद्धि मार खाएगी। मैम अभी जल्दी आंसर करना है, जल्दी जल्दी। यस। और जयांश, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम डियर। बीकॉम का पेपर है, प्लीज डोंट स्पेंड 3 आवर्स। मेरे को पता भी नहीं चलना चाहिए तुम 3 घंटे बीकॉम का पेपर बैठे। 1.5 घंटे में जो लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, वापस आओ और बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? इट्स ओके, Thank you, यू कैन ma'am. सेक्रीफाइस Okay. सम 6 मार्क्स फॉर बीकॉम। Okay, ma'am. मैम कल से 10 AM वाली क्लास नहीं होगी ना? कल 10 AM वाली क्लास नहीं है। कल आई विल बी हैविंग द इंग्लिश क्लास फॉर, मैं शेड्यूल डालती हूँ मैं कल क्या कवर Okay. करना है ना। Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। Okay, ma'am. सी यू मैम। एनी डाउट्स रिद्धि? नो मैम, आई फॉरगॉट टू। सुनो ना, मुझे एक बात बताओगे क्या? एवरीवन, गाइस, आर यू ऑल हियर? स्लीपी मोड में आ चुके हो क्या थोड़ा थोड़ा? नो मैम। No, ma'am. ऑल गुड ना? ओके। यस। No, ma'am.
कभी कभी कुछ लोन्स लोगों को ऐसे मिलते हैं जिसमें ना गवर्नमेंट बोलता है मैं सिक्योरिटी देता हूं कि यदि ये बंदा पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट विल पे बैक, गवर्नमेंट विल पे। सो गवर्नमेंट हैज गिवन अ गारंटी। गवर्नमेंट के दिए हुए गारंटी वाले एडवांसेस को क्या आप कभी भी एनपीए में डाल सकते हो क्या, एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स? नो मैम। ऐसा नेवर से नो डायरेक्टली टू मी, आई एम टेलिंग दिस Central government. टुगेदर। ओके Central government मैं में तो नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गारंटी तो ही आप तो ही Central government. एनपीए Yes, क्लासिफाई ma'am. नहीं करोगे, राइट? यस। Yes, ma'am. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यस मैम मैं रिवोक कर रहा हूँ अपना गारंटी, सीजी वाले में ही आप उसको नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर 90 डेज ही फॉलो करना है फिर आपको प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्निशन। यस मैम Yes. Now you will remember this for the exam, for because of making the mistake in the class. यस तो मैम सुनो ना, हाँ बोलो ना। स्टेट गवर्नमेंट होगा तो नॉर्मली ट्रीट करना है। किसके लिए? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए फिर नॉर्मली ट्रीट करते हैं भाई। सुनो ना, वो आपके पास क्रॉप, हाँ इस पे एमसीक्यूज आया था जैन 25 में। हाँ क्या, हाँ वो आता है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें ही ट्रीट करते हैं। सुनो ना, वो क्रॉप वाले का मालूम है क्या आप लोगों को? क्रॉप वाले का एडवांसेस को एनपीए कब ट्रीट करना है, कहाँ दिया है वो क्रॉप वाला? वो सीजन लॉन्ग टर्म सीजन शॉर्ट टर्म हाँ, सीजन तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि वो फसल लॉन्ग ड्यूरेशन का है या शॉर्ट ड्यूरेशन का फसल है। ठीक है। सो सपोज एग्रीकल्चर, अभी रूरल बैंक वगैरह क्या करते हैं, दे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह मैम जो एक रहते डाउट है हैं, लोन्स टू द फार्मर्स एंड ऑल। ठीक है। अभी इस केस में फार्मर को लोन दिया एग्रीकल्चर के लिए, तो लॉन्ग मैम लोन किसमें आप क्लासिफाई करो, वेदर इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, उसके हिसाब से क्लासिफाई करना पड़ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वुड बी क्रॉप विथ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। ऐसी फसलें जिनको 1 साल से ज्यादा लगता है पूरा हार्वेस्ट करने के लिए, पूरे प्रोसेस में। विच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन वुड बी ट्रीटेड एज शॉर्ट ड्यूरेशन। द क्रॉप सीजन फॉर ईच crop would, which mean the period up to harvesting of crop raised would be as determined by the state level banker committee। तो प्रोविजनिंग नॉर्म किधर है बॉस? ये क्या मतलब हुआ? सिर्फ इतना ज्ञान लेने के लिए थोड़ी हम बैठे हुए थे। रुको, फसलों का मैं बताती हूँ क्या करते हैं। मैम हाँ मैम वो गवर्नमेंट गारंटी में वो उसमें कुछ पूछना था, एक मिनट पूछ यार सुनो ना, कुछ समझ नहीं आता है घनश्याम, इतना बैकग्राउंड में बहुत, एक तो पतला आवाज आता है, ऊपर से बैकग्राउंड में नॉइज आता है, मेरे को कभी आपका आवाज नहीं सुनाई देता ठीक से आप क्या बोल रहे हो। आप टाइप करोगे क्या? मैम हाँ मैम बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट गारंटी में कुछ डाउट था हाँ बोलो ना। मैम। उसमें वो अ, मैम एनपीए रिगार्ड इनकम रिकॉग्निशन पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी में, और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी में प्रोविजन इनकम रिकॉग्निशन पर्पस, ये इसका मतलब क्या है? अरे व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो नॉर्मल इनकम रिकॉग्निशन का प्रोविजन है, कि मतलब आप, एक सेकेंड ना, देखो इनकम रिकॉग्निशन पर्पस क्या बोलता है कि आप नॉर्मली तो हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो हम सबका जैसे जैसे इंटरेस्ट अक्रू होने लगता है हम उसको इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट बराबर। द मोमेंट वो बंदा एनपीए कन्वर्ट होता है, फिर हम बंद कर देते हैं उसका इनकम अक्रू करना, फिर हमको जब पैसा मिलेगा तो ही हम इनकम अक्रू करेंगे। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटेड लोन हुआ तो जैसे 90 डेज का पीरियड क्रॉस होगा वो एनपीए बन जाएगा। तो उन्होंने बोला सीधे उस पर इंटरेस्ट अक्रू करना ही बंद कर देना, फिर आप इनकम रिकॉग्निशन के लिए नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना कि आफ्टर इट हैज बीन ऑलरेडी क्लासिफाइड एज एनपीए, जब आपका पैसा रियलाइज होगा इंटरेस्ट का तो ही आप उसको इनकम में डालोगे, अदरवाइज नहीं डालो। क्लियर? आपका क्वेरी यही था क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम, और एक वो प्रोविजन, हाँ यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताना, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज आपको पूछ रही हूँ, जनरल नॉलेज नहीं है एक्चुअली, ये स्पेशल नॉलेज है।
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आपने क्या बोला था कि आप असेट को एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी है। कब तक आप एसेट क्लासिफाई नहीं करोगे उसको एनपीए? जब तक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सेंट्रल आई एम गवर्नमेंट If the रिवोकिंग guarantee माई revoke, गारंटी, मैं नहीं हाँ पे रिवोक नहीं करूंगा। करते। ठीक है, बट एक बात याद रखो, ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट दिस स्पेशल नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ असेट विल वर्क। बट इंटरेस्ट के लिए आपको नॉर्मल प्रूडेंशियल नॉर्म फॉलो करना है। जैसे ही उस बंदे ने पे बियॉन्ड द उसका ड्यू डेट पे करना बंद कर दिया, आप उसका इनकम रिकॉग्नाइज तभी करना जब वो रिसीव होगा। रियलाइज हो। अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट मत डालना वहां पर। आर वी क्लियर एवरीवन? यस Yes. मैम। जूही, विवेक, आर यू गाइस हियर? विजन, Yes. कौन है यहाँ पर? जूही कहाँ गई, चली गई? यस मैम। ये क्लियर हुआ ना, गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और ये? Yes, ma'am. जूही, हाँ मैम। नहीं हुआ। पहले एक्सप्लेन करो क्लास को, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले और स्टेट गवर्नमेंट वाले में क्या करेंगे? एग्रीकल्चर एडवांसेस में आप पहले लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अलग करो, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वाले एडवांसेस अलग करो एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वाले अलग करना। ये आएगा क्वेश्चन तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट आपको मालूम होना चाहिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इसको एनपीए क्लासिफाई आप कैसे करोगे? एनपीए क्लासिफिकेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अमाउंट रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 Two क्रॉप crop season. सीजन। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले के लिए ओवरड्यू फॉर, ओके मानवी, फॉर 1 क्रॉप सीजन। मेक सेंस? यस बाकी मैम। बच्चे लेट के क्लास देख रहे हैं क्या? नो मैम। No, ma'am. ऐसा फुल, नो मैम। ओके। Did I cover the securities part अच्छे से yesterday in the class with example? Yes, ma'am. मतलब 2 crop सीजन, मतलब उसका कोई टाइम लिमिट मतलब नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी हर फसल का अलग अलग, वही उन्होंने बोला ना, वो स्टेट बैंकर कमेटी के थ्रू, वो स्टेट बैंकर कमेटी डिसाइड करेगी कि वो ड्यूरेशन क्या होगा। आप ठीक देखो है। आपके नोट्स में कहीं पर लिखा होगा। या उसका उसका कमेटी का नाम क्या है? स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। बैंकर कमेटी। क्योंकि हर एक स्टेट में फसल अलग अलग होंगे ना, तो उसके हिसाब से फिर वो क्रॉप सीजन भी अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा उसको, तो दे विल डिटरमाइन कि कितना पीरियड लगता है उसके लिए। ओके मैम। जो ही गवर्नमेंट इसका क्या करने का है? मैम मैं खाना खाना। देखो, डन प्रियंका, ये वाला। रिद्धि आप भी खाना खा लो प्लीज डियर। अभी अभी बहुत ऐसा लग रहा है जाती कर रही हूँ मैं। नहीं मैम, अभी कितना ही टाइम हुआ है। 10:30 खा 10:30 खाती हूँ मैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर बेटर मेटाबॉलिज्म। लेट द एज किक इन, यस। फिर पता चलेगा। I used to be like this, so reckless and dumb. मेरे को पता चला the moment I turned 30. Oh my God. Oh my God. मैम, डू यू माइंड मी आस्किंग हाउ ओल्ड आर यू? I'm 32. I'll turn 33 this year. ओह। Yeah.
backed by CG, backed by स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एनपीए ओनली व्हेन गवर्नमेंट repudiates its guarantee। मैंने आपको क्या बोला था? दिस एग्जम्पशन अप्लाई ओनली फॉर असेट क्लासिफिकेशन, कि असेट क्लासिफिकेशन में आप उसको एनपीए मत कर लेना, बट फॉर इनकम रिकॉग्निशन डू इट नॉर्मली, दैट मीन्स व्हेन रियलाइज्ड ओनली। क्योंकि द मोमेंट वो एनपीए कैटेगरी में आ सकता है, मतलब नॉर्मली वो अगर वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी नॉर्मली अगर वो एनपीए कैटेगरी में आ सकती है, तो सिर्फ आप एनपीए नहीं बोल रहे हो क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ये बैक किया है इसके लिए, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट का लिए तो आप नॉर्मल नॉर्म्स ही फॉलो करोगे। आर वी क्लियर एवरीवन? यस मैम। बैक्ड बाय एसजी में क्लासिफाई एनपीए नॉर्मली। फंडेड फैसिलिटी नॉन फंडेड फैसिलिटी का डिफरेंस समझते हो आप लोग? आंसर बहुत इजी है, लेकिन वो सिर्फ आपने को मालूम नहीं है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। द मोमेंट आपको पता चलेगा आप बोलोगे ओ माय गॉड, इट्स दैट इजी। मैम आप एक बार बैक बाय सीजी वाला एक्सप्लेन कर सकते हो शॉर्ट में बस? हाँ, मैम आप अनम्यूट, म्यूट और म्यूट। मैम कॉल पे है। ओके ओके।
आई एम सो सॉरी, आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ। एमटीपी एमटीपी में क्वेश्चन था जहां पर उन्होंने ना 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया। बेसिक आई डोंट नो 4 नंबर का था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बट उन्होंने ना सर्टेन टर्मिनोलॉजी, सर्टेन सेंटेंसेस दिए बैंक ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, एंड फिर आपको बोला है डिस्क्राइब करने के लिए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आई विल से, और आप मुझे बताओ क्या है। ठीक है, ऑडिट ऑफ बोरोवर्स, व्हाट, ऑडिट ऑफ, प्रॉपरली सुना, ऑडिट ऑफ बैंक्स बोरोवर on a request of bank to verify borrower's current asset. Audit of, Stop audit. हाँ, audit of bank's client or customer at bank's request to verify borrower's current asset. ऐसा कब होता है? जब बैंक क्या करवाता है, अपना आपके Stock अपने Stock कस्टमर्स audit. का स्टॉक ऑडिट। audit. ठीक है, ओके। लिमिट up to which a client can withdraw from sanctioned working capital limit। क्या बोलेंगे इसको? Drawing power. drawing power, Make sense? Yes, Limit ma'am. up to which client can withdraw from sanctioned limit। Third, statutory right of a creditor to adjust debit balance in customer's account। Set off. Set off. Set off. How did you know this answer? I have serious doubt. Do you guys have the बनाया question आपने in front इसलिए। of you? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Against debit balance बोला तो फिर So debit balance you can adjust against credit balance yes. in another account। कल ही पढ़ा था ये अपन ने। हाँ. Okay. Creation of security in a bank branch by delivery of title deeds by a prospective borrower of Pledge. हाँ, Pledge. टाइटल डीड कब देते हैं इमोल प्रॉपर्टी का? मॉर्टगेज। Mortgage. Mortgage. हाँ, रिद्धि आप ये पूछ रहे थे ना। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी जब भी दी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो मतलब बहुत बड़ा किसी का हाथ है आपके सर पे, उस बोरोवर के सर पे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू कितना भी लोन ले, आई एम बैकिंग यू। तो बैंक तब तक उस अकाउंट को एनपीए नहीं क्लासिफाई कर सकती जब तक सीजी का हाथ है उसके ऊपर, सर पे। लेकिन सीजी का हाथ है उसके सर पे, वो सिर्फ असेट क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा लगता है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको एनपीए क्लासिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। बट इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स के हिसाब से क्या आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू कर सकते हो उस अकाउंट पे? द आंसर इज नो। क्योंकि अब नॉर्मली क्या बोलता है इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म, कि अगर कोई अकाउंट एनपीए बन गया है, कोई अकाउंट यदि एनपीए बन गया है, तो इमिडिएटली
उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आप मत कैलकुलेट, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना बंद कर दो, क्योंकि आप इनकम साइड में इन्फ्लेट करके इंटरेस्ट दिखाते जाओगे और ये बंदा तो जब प्रिंसिपल नहीं पे कर रहा है तो फिर इंटरेस्ट क्या पे करेगा, आप अननेसेसरी इनकम बढ़ा के दिखाओगे। सो एनपीए वाले अकाउंट पे इंटरेस्ट तभी आप दिखाओगे जब वो अकाउंट में एक्चुअली रिसीव हुआ है इंटरेस्ट। यस, तो सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड वाले भी अकाउंट में फॉलो करना पड़ेगा बैंक को। यहां पर नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं लेट्स इंटरेस्ट क्रेडिट करते जाते हैं अकाउंट में, और सॉरी डेबिट करते जाते हैं उसके अकाउंट में और फिर वो बंदा पे कर देगा क्योंकि सीजी ने तो बोला है। अरे नो नो नो, डोंट डू दैट। ठीक है। यस मैम। नाउ सीजी बैक्ड वाले अकाउंट्स में आप एनपीए कब क्लासिफाई कर सकते हो, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना गारंटी रिवोक। रिवोक या रेपुडिएट। ठीक है, सीजी बोलेगा कि नहीं फ्रॉम दिस डे आई एम नॉट गारंटिंग दिस लोन, अब गया। वी कैन क्लासिफाई इट एज एनपीए। क्योंकि बैंक का तो वाटी लगेगा ना, सीजी ने के बोल देने से क्या है, वो बंदा पैसा थोड़ी दे रहा है, पैसा तो वो वैसे भी खा के भाग गया है, राइट। तो वो पैसा सीधे एनपीए में डालना पड़ेगा आपको। ओके मैम। लॉजिकली आर एबल टू गेट दिस ना एवरीवन? यस। ओके, और क्या है इसमें अच्छा, क्या है जो आई कैन टेक तो वर्ड मैम एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड कमिटेड। इरोजन वाला लेते, एक सेकंड पहले, उसके पहले ये छोटा सा पॉइंट करो, रिवर्सल ऑफ इनकम पे आओ गाइस। नोट्स में ये 10.116 पे है, रिवर्सल ऑफ इनकम पे एवरीवन। आर यू हियर गाइस एवरीवन? आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव Yes, नोट्स पे। यस मैम। If any advance, including bill purchase discounted, becomes NPA at the close of any year, कोई अकाउंट जो है 31 मार्च को क्या हो गया, मतलब 31 मार्च का आते आते वो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए क्लासिफाई हो गया। The entire interest accrued and credited to income account in the past period should be reversed and provided for if the same is not realized. जितना भी अकाउंट आप इंटरेस्ट आप क्रेडिट करते जा रहे थे ना उस दिन तक, तुरंत उसको रिवर्स करके डाल दो कि भाई ऐसा एज्यूम करो कि वो इंटरेस्ट आपको मिला ही नहीं है, आप प्रोवाइड फॉर कर दो, प्रोविजन ले लो उस अकाउंट के अगेंस्ट में, उस अमाउंट का इंटरेस्ट दिखाओ ही मत, उसको रिवर्स मार के एंट्री को उसको प्रोविजन की तरह बुक कर दो कि यू हैव प्रोवाइडेड फॉर दैट एनपीए नाउ। एंड ये गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट को भी लगेगा, इसके लिए बोला था ना, गवर्नमेंट गारंटी के अकाउंट में इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स आप नॉर्मली फॉलो करते हो। आर वी क्लियर एवरीवन? आपने क्या किया, देखो कोई अकाउंट नॉर्मली चलते जा रहा था, आप हर महीने उसके ऊपर इंटरेस्ट 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 भी लगाते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया 31 मार्च को, आपने बोला हटाओ इसको, ये एनपीए बन चुका है, तो ये जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, जो इस बंदे ने पे कभी नहीं किया, ये पागल हो गया, अब इसको इंटरेस्ट अक्रूड दिखा के क्या फायदा है, इसको आप क्या करो, रिवर्सल एंट्री पास करो, एंड अभी प्रोविजन फॉर एनपीए लेना पड़ेगा, उसमें ये रिवर्सल यूज हो जाएगा आपका। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, फीस, कमीशन, सिमिलर इनकम दैट हैव अक्रूड शुड सीज टू अक्रू इन द करंट पीरियड। अब इसके बाद से आप कृपया करके ये ग्रीन अक्रूवल करना बंद कर दे, क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी एनपीए बन चुका है एंड पास्ट वाला अनकलेक्टेड है, तो उसको रिवर्स करना है, प्रोवाइड फॉर करना है। करेक्ट? यस। फर्दर, in case of banks which have wrongly recognized income in the past, should reverse the interest if it was recognized as income during the current year and make a provision for equivalent amount if it was recognized as income in the previous. What does it mean? आपने अब in case of a bank which have wrongly recognized income in the past to reverse the interest if it was recognized an income during the current year, or make a provision for an equivalent amount if it was a recognized as income in the previous year. अगर देखो, अगर करंट ईयर में, करंट ईयर से देखो,
आपने रॉन्गली क्या किया था, यू रिकॉग्नाइज्ड इनकम। कभी कभी क्या होता है ना, एनपीए हो जाता है, लेकिन एनपीए क्लासिफाई करने वाला टीम किसी और ऑफिस में बैठा है, इंटरेस्ट अक्रूवल करने वाला टीम किसी और ऑफिस में बैठा है। तो इंटरेस्ट अक्रूवल वाला धड़धड़ 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 करके इंटरेस्ट अक्रू करते जाता है, फिर उसको पता चलता है अरे नहीं करना था, ये अकाउंट तो एनपीए हो गए। अब वो गलती से क्लासिफाई हो गया ना, सारा इनकम उसमें अक्रूड हो चुका है, रॉन्गली इनकम, राइट। सो उन्होंने बोला है तो आप, मैम हाँ, थर्ड पॉइंट तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन ही हो गया, मतलब उसमें कुछ अलग क्या है, अलग सेम नहीं ही है, है वो सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने की। ना। ओके ओके। ठीक है, बट लॉजिकली यस समझा ना मैम। आप क्या बोल रहा है आपको वो हाँ। ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पर गलत रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम हो गया है, तो आप उसको रिवर्स कर दो और मेक अ प्रोविजन फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट इफ सच इनकम रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर। आपके पास दोनों तरीका है, ओके। या तो रिवर्स करो उस एंट्री को, या तो प्रोवाइड फॉर कर दो। अगर पास्ट ईयर से रिलेटेड है तो अभी उसको आप पिछले साल में जाके थोड़ी एंट्री चेंज करोगे, तो इस साल आप प्रोविजन डाल दो उसका। क्या बोलती है पब्लिक? यस मैम। Furthermore, the auditor should inquire, आप इंक्वायरी करो, if there are any large debit in interest income account that have not been explained। कोई बहुत बड़ा बड़ा इंटरेस्ट डाल के रखा है किसी अकाउंट में, it should be inquired whether there are any communication from the borrower's point of differences in interest charge and whether appropriate action has been taken। कुछ बहुत बड़ा बड़ा इंटरेस्ट डेबिट करके रखा हुआ है, कुछ पेमेंट ही नहीं आ रहा है उस केस में, आप तुरंत पूछो ना उसको, कि उसको बोलो कि भाई मतलब ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन वेदर, नहीं, बैंक से पूछो कि बैंक, डियर बैंक, मुझे बताओगे क्या, आर देयर एनी कम्युनिकेशन विद द बोरोअर, बोरोअर ने क्या ये इनकम के रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन वगैरह रेस की है क्या, इतना बड़ा बड़ा इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट कर मतलब डेबिट मार के रखा है इनके अकाउंट में। समझे ना, क्योंकि आपको मालूम है कि वो इंटरेस्ट है, लेकिन सामने वाला अगर पे नहीं करेगा तो फिर वो इंटरेस्ट अक्रूवल तो वेस्ट हो जाएगा ना, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सिर्फ लार्ज इंटरेस्ट के केस में एक स्पेशल पॉइंट है कि आपको उसमें इंक्वायरी करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा एज नेसेसरी। ओके। डू आई हैव एवरीवन गाइस? यस मैम। हाँ, अभी सुनो, आपके पास अब पता है क्या कांड क्या हुआ है। देखो, आपने ना किसी को लोन दिया, दिस इज बैंक, दिस इज बोरोअर। बोरोअर आस्क फॉर लोन और बोला मैं सिक्योरिटी में क्या करता हूं, आई विल गिव यू टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, यू गिव मी 50 CR लोन। बैंक ने खुशी खुशी 50 CR लोन दे दिया। आर यू क्लियर एवरीवन सो फार विद द स्टोरी? यस मैम। अभी पता है प्रॉब्लम क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे थी ना, समथिंग रॉन्ग हैपेंड इन दिस एरिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर्टी लॉस्ट 90% ऑफ वैल्यू। नो बडी इवन वॉन्ट टू, कोई कोई सारे डेवलपमेंट जो चल रहे थे वो रुक गए, नो बडी इज बाइंग द प्रॉपर्टी, लाइक बिल्डर छोड़ करके भागे, समथिंग समथिंग क्रेजी हैपेंड विद दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्शियल what रिकवरी। happened over here, sorry, पार्शियल रिकवरी। so what happened over here is the
erosion in the value of security. या तो फिर फ्रॉड, इट कैन बी बोथ, क्योंकि हो सकता है कि ये बंदा जो बोरोवर है इसको मालूम है कि ये कांड होने वाला है, उसने जानबूझ के ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है, उसको मालूम है कि बाद में जाके इस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं रहेगा, मैं लोन लेकर के भाग जाऊंगा, बैंक विल नेवर बी एबल टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम मी बिकॉज ये प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू नहीं है एंड आई विल बी लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, वो ऑलरेडी वहां पर जुरिडिक्शन लॉज इतने वीक है कि कोई मेरे को पकड़ नहीं सकता है। गॉड। डन। एनपीए नॉर्म्स क्या बोलते हैं व्हेन देयर इज अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोवर्स? Guys, erosion means gradual destruction or diminution of something not prudent to follow stages of asset classification. It should be straight away classified as doubtful or loss asset as appropriate as follows. तुरंत ऐसे अकाउंट को आपको डाउटफुल या लॉस एसेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सपोज वो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो था अगर लेस देन 50% होता, कितना? लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक, स्टार्टिंग में जो इंसेप्शन के टाइम पे जो वैल्यू असेट किया था उससे 50% से भी नीचे गिर जाता, स्ट्रेट अवे उसको डाउटफुल कैटेगरी में ट्रांसफर करते एंड प्रोविजन बना लेते। लेस देन 10%, if the realizable value of security is less than 10% of the outstanding in the borrower account, ये नहीं बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू असेस किया था उससे जितना आउटस्टैंडिंग बोरोवर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसके 10% से भी नीचे चला गया है वैल्यू, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी आप ये मानो ही नहीं कुछ भी है एंड असेट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस असेट। इट में इधर बी राइट रिटर्न ऑफ फुल्ली प्रोवाइडेड, या तो 100% आप प्रोविजन ले लो या तो राइट ऑफ ही कर दो उसको। आपको समझ रहा है ना 50% किस वैल्यू से एंड 10% किस वैल्यू से है, क्योंकि इसी चीज का गेम है एग्जाम में अगर वो हमको एमसीक्यू में खेलेंगे तो। यस रिद्धि। यस मैम। मैम हम लोग जितना लोन लेंगे वो तो जितना अमाउंट का हमने मॉर्गेज रखा तो ज्यादा ही होगा, तो उस जितना अमाउंट का हमारे अकाउंट में है क्रेडिट मतलब जो लिया है वो तो हमेशा मॉर्गेज से ज्यादा ही होगा ना, तो उसका 10% से मॉर्गेज से ज्यादा होगा ना। कैसे मतलब? सॉरी समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैम आप बोल रहे हो 10% अकाउंट बैलेंस, तो अकाउंट 10% जितना बोरोवर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है अमाउंट उसका 10%। तो मतलब अगर उसने पे ही नहीं किया है तो फिर तो ज्यादा रहेगा ना कैसे 10%। मतलब? सोचो अगर सपोज आपने लोन दी, इन्होंने 50 करोड़ की ओरिजिनल वैल्यू थी टाइटल असेट की, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 30 CR का लोन दिया है, ओके ओके ठीक है समझा। हाँ है ना? हाँ। तो 30 CR का 10% 3 थ्री। CR। हाँ अब अगर इसका वैल्यू गिर के कितना हुआ, लेस देन, अगर सपोज ओरिजिनली 50 करोड़ की वैल्यू असेस की थी, इसका 50% कितना, 25% और लेस अगर हुआ तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देना, ठीक है, अगर वैल्यू। या फिर अगर आप बोल रहे हो कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इसके 3 करोड़ से भी नीचे चली गई तो आप सीधे उसको लॉस असेट क्लासिफाई कर दो। ओके मैम, गॉट इट गॉट इट। क्या बोलती है पब्लिक? यस मैम। देखो ये एडवांसेस ही है जो थोड़ा सा ना अच्छे से देखना पड़ता है कि किस चीज का एडवांसेस है। और मैम और कितना टाइम है क्लास को?
I think we can close. Let me just cover one or two more points. मतलब max 10 minutes max. Okay, ma'am. Now, suppose there are advances against term deposit, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, एलआईसी वगैरह एटसेट्रा, एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में, मतलब कुछ ना कुछ सॉलिड सिक्योरिटी ऑलरेडी है। मतलब या तो जो टर्म डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में लोन लिया गया है, एडवांसेस लिया गया है, या तो फिर केवीपी, आईवीपी क्या होता है? केवीपी इज बेसिकली किसान विकास पत्र, वो पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट में नहीं लोन ले, पोस्ट ऑफिस वगैरह से जो लोन लेते हैं उसके केसेस में, या लाइफ पॉलिसीज के अगेंस्ट में जो लोन लिया हुआ है वैसी चीजें। सो अगर ऐसे ऐसे अकाउंट्स में लाइक अभी ऑलरेडी देयर इज अ दिस केवीपी, आईवीपी आर द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो अगर इस स्कीम्स के अंडर अगर आपने लोन लिए हुए हैं, ठीक है, तो बैंक उसको ना एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड उसने एडिक्वेट मार्जिन रखा हुआ है। तो नीड नॉट टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। अभी आपने एग्रीकल्चर एडवांसेस नॉर्मली पढ़ लिया था, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। यस मैम। बट दिक्कत क्या है? एग्रीकल्चर एडवांसेस आर नाउ अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ बाढ़ आ गया। मास्टर सर्कुलर ऑफ आरबीआई deals elaborately with classification and income recognition issues due to impairment caused by the natural calamity. Bank may decide on their own their relief measures. क्या कर सकती है बैंक? They can convert the short-term production loan to a long-term loan or reschedulement of the repayment period and sanction of the fresh term loan, subject to guidelines of the RBI Master Circular on prudential norms on income recognition, asset classification, provisioning, and in such cases NPA classification would be governed by the रीशेड्यूल टर्म्स। तो अगर सपोज ऐसा कुछ अभी इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं था ना, तो उनको बोला है बैंक, आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से क्या बोला है कि बैंक खुद से डिसाइड करे कि उसको लोगों को, मतलब फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए वो क्या कर सकते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि लोगों को टाइम मिले रीपेमेंट करने का, या तो फिर रीपेमेंट का जो पीरियड है वो थोड़ा सा डिफर कर दे, रीशेड्यूल कर दे उसको। तो उन्होंने बोला फिर एनपीए क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, फिर वो रीशेड्यूल डेट के हिसाब से हो जाएगा। सिर्फ इतना ही। यस, यस मैम। उन्होंने अपने स्टाफ को ही एडवांसेस दिए। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस एज अ बैंकर शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। यस, इंटरेस्ट अगर आप उसमें चार्ज कर रहे हो वो सारे एडवांसेस पे अपने बैंक के एम्प्लॉय से, तो उसको अपने एडवांस के पोर्टफोलियो में आप ऐड कर लो। If in case of housing loan or similar advances granted to staff member where interest is payable after the recovery of principal, interest need not to be considered as overdue from the first quarter itself. Such loans and advances should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installments of principal or payment of interest on the respective due date. The staff advances by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under the head of others under the schedule of other asset. सो एज अ एम्प्लॉयर आपने अपने स्टाफ को ना, बहुत सारी कंपनीज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा पैसा उनको जरूरत हो रहता है तो दे गिव एज अ लोन। सो आप एज अ एम्प्लॉयर दे रहे हो, नॉट एज अ बैंकर दे रहे हो उनको ना, तो फिर आप अदर एसेट में डालो। अगर आप एज अ बैंकर अपने ही एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हो तो यू ट्रीटेड एज एनी अदर लोन, तो फिर उसके बाद में। लेकिन आप ऐसे स्टाफ दे रहे हो अगर उनको लोन, तो आप उनका आपने अगर टर्म्स ऐसे रखे कि पूरा प्रिंसिपल पेमेंट कर दो उसके बाद इंटरेस्ट देना, तो फिर इंटरेस्ट का अक्रूवल और इनकम रिकॉग्निशन उसके बाद से ही चालू हो जाएगा जब इंटरेस्ट पेमेंट का, सॉरी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का पीरियड खत्म हो गया उनका। ये जनरल नॉलेज है, ठीक है? अगर वो पूछेंगे तो पूछेंगे, बट यू कीप दैट इन माइंड। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस कर दिया अपन ने, ठीक है? अभी थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ध्यान रखो, पता है क्या है? कौन से अकाउंट्स के बारे में? कुछ अकाउंट्स ऐसे रहते हैं ना जो टाइम पे तो पे नहीं करते हैं, और जैसे बैलेंस शीट आती है ना तो थोड़ा सा क्रेडिट आ जाता है उनके अकाउंट में।
तो ताकि वो एनपीए क्लासिफाई नहीं हो या ऑडिटर की नजर में नहीं आए. So as an auditor, you should be handling these accounts with very carefully, and as a banker also. ठीक है, क्या बोला? The asset classification of borrower account where a solitary or a few credits are recorded just before the balance sheet date should be handled with care and without scope of subjectivity. मतलब bias रह के मत उसको सोचो, unbiased होके सोचो कि क्या कांड कर रहे हैं ये लोग. Where an account indicates inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed as NPA. अगर आपको मालूम चले कि just बिफोर द बैलेंस शीट थोड़ा मोड़ा पैसा डाल देते हैं ये लोग ताकि उनका अकाउंट एनपीए में नहीं जाए, तो आप उसको फिर सब्जेक्टिवली, आप ऑब्जेक्टिवली देखो और उसको एनपीए क्लासिफाई कर दो. द ऑडिटर शुड चेक फॉर सैंपल ट्रांजेक्शन इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू get a knowledge of objective behind the transaction if they have any relation to each other in the borrower account, and if any some transaction are being reversed during the few first days after the closing might show arrangement to prevent borrower from slipping into NPA. कभी कभी बैंक भी मिला रहता है बोरोवर के साथ में, वो बोलता है कि यार थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दो सर, हम देख लेंगे, बाकी मैनेज कर लेंगे, ऑडिटर की नजर में नहीं आने देंगे. और फिर जैसे ही 1 अप्रैल आता है उसके बाद वो फटाक से बोरो कर लेते हैं हम वो अमाउंट. तो मैम ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि बैंक वालों को क्लीन रिपोर्ट चाहिए रहता है. यस एग्जैक्टली, बैंक डजंट वांट टू शो कि उनके पास इतना एनपी है, तो फिर वो ऐसे सर प्लीज इतना 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 सर आप अरेंज कर दो एंड देन उसके बाद में आप विड्रॉ कर लेना. तो 31 मार्च तक ऑडिटर देखने वाला है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो ऐसा होता है. ओके मैम. नो, I know there are still few topics which are remaining from audit of bank. You will get all of this from me in coming days, but I think you have good enough knowledge of audit of bank in terms of handling the exam question. So don't be worried. Whatever I have to cover more, I will find out what is more important for you. I will still teach you आराम से जैसे मैं normally चीजें सिखाती हूँ. But based on whatever knowledge you have as of now, whatever you had till yesterday, रिवाइज ऑन ऑडिट ऑफ बैंक. डोंट टेक दिस चैप्टर एज अ लाइटली कि यार ये चैप्टर, क्योंकि मैंने देखा लास्ट 2 अटेम्प्ट से और लास्ट फ्यू अटेम्प्ट से आईसीआई ने एम्फेसिस दिया है कि इंटर के बच्चों को ऑडिट ऑफ बैंक आना चाहिए. एंड व्हेन दे से आना चाहिए मतलब दे आर गोइंग टू टेस्ट इट इन एनी वे पॉसिबल एट द डिस्क्रिप्टिव में एंड डूइंग एवरीथिंग सो वेल एंड लीविंग अ ऑडिट ऑफ बैंक, यू माइट गेट इनटू अ रिग्रेट मोड. लिविंग, आप कुछ चैप्टर 9 का कुछ एक छोड़ दिया है ये वो, आपको इतना नहीं दुख होगा, लेकिन ऑडिट ऑफ बैंक छोड़ दिया और आपको लगेगा ओ माय गॉड, व्हाई डोंट आई नो कि ऑडिट ऑफ कंसोर्टियम क्या होता है, क्योंकि यहां पर आप गेस नहीं कर सकते आंसर क्या है. ऑडिट ऑफ होटल में बोलूंगी तो आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कुछ तो सोच ही लोगे कि यार होटल कैसे रेवेन्यू कमाता होगा, होटल का मेन एक्सपेंस क्या होता होगा, होटल का इंटरनल कंट्रोल्स क्या है. यू विल स्टिल बी एबल टू राइट समथिंग. गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस में हाउ आर यू गोइंग टू राइट एनीथिंग, राइट? So please give this chapter the respect it deserves. And I am available for any doubts possible. Matlab, I am anyway here only, full time available for you guys. Whenever you have any doubts, anything, just reach out to me. From tomorrow, I'll even have more time to deal with your queries. Until now, I was like every day I was teaching about 9 hours, 10 hours, marathon 11 hours every day. I didn't have time, but from tomorrow, I'm gonna have some time. So reach out to me. Yes, Riddhi. मैम जस्ट एक टॉपिक था तो ऑन पार्शियल रिकवरी इन एनपीए, वो हाँ. बस आप कभी भी I'll get it completed. हाँ, don't worry. मतलब जितना भी छोटे छोटे टॉपिक है ना मैं कवर करवा दूंगी उसका. ओके I'll मैम. send through voice notes, कुछ ना कुछ I'll send it to you आराम से, ताकि you just listen to it for one time and you will be able to write something good about it in the exam. ठीक है? ओके मैम. एंड 1.5 डेज में लाइक सब चैप्टर आप रिवाइज कराने वाले हो? Yes, 100%. ओके, ठीक है मैम. That is always my goal कि मतलब मैं आपको like whenever you come from the cost paper around mostly around 6:30 you will be back. 7 से I'll start 7:30 से या 8 से maximum आप थोड़ा रेस्ट ले लो. I'll start taking the session. Session is going to be mainly like this. It's not going to be a fully marathon कि मैं एकदम फटाफट फटाफट चीजें करवा रही हूँ. We'll discuss कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि mainly my class के मैराथन में only my class students come और Zoom पे वही बच्चे आते हैं. ठीक है? So you will still be able to talk to me, ask me queries कि ये याद नहीं आ रहा, ये क्या पॉइंट था, तो हम उसी वे में कंडक्ट करेंगे. So that
एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यू टेक अ ब्रेक, गो एंड स्लीप, एंड देन नेक्स्ट डे उठो और फिर वापस रिवाइज कर लो वॉट एवर टॉपिक यू वांट टू रिवाइज, ओके मैम। ठीक है। मैम ये हाँ, भी जल्दी हो गया, लाइक 2 आवर्स अप्रोक्स में हो गया ऑडिट ऑफ बैंक्स ना। या मतलब सिर्फ अभी चैप्टर 9 पे थोड़ा कंफर्ट ले लेंगे अपन, सिर्फ उतना ही है, अब वो करना पड़ेगा। बाकी तो आई थिंक काफी काफी कवरेज हो गया है आपका, काफी अच्छा कवरेज हो गया इन टर्म्स ऑफ कि आपको ऐसा नहीं है कि यू डोंट नो, क्या रहा 560 में ये बाकी रह गया, चैप्टर 4 में ये नहीं आता है, ऐसा नहीं है। यू नो एवरी सिंगल स्टैंडर्ड। यस मैम। That's a really good feeling of knowing, because if there is still a student who would be asking you कि यार कौन सा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ लूं क्या, ये फीलिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो आई साइड। वो हर चीज से सब कुछ पूछना पसंद करते हैं एट इंटर लेवल। यस, यस। and I am available, guys, so please feel free to reach out. I might take some time to reply to you if I'm occupied somewhere, but I will reply. I will send voice note in whatever way possible. I will be there to support you till your exams, ठीक है। Any ओके। other queries from me? नो मैम। Vision, anything? पक्का, ठीक है। आयुषी, anything? गीता, शोएब, नहीं, केशव, No. ठीक है। Cool. So I wish you all a really, really, really great time preparing for rest of the papers. Do your best, because मुझे मालूम है मेरा पेपर बहुत बाद में आने वाला है, लाइक यू नो जो दोज हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स उनके पास बहुत लंबा जर्नी है, तो आई रियली वांट कि यू इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर टाइम फॉर दैट। दोज हु आर कमिंग फॉर ऑडिट, लाइक फॉर जस्ट गिविंग ग्रुप 2, उनके लिए कॉस्टिंग है, देन ऑडिट विल कम, देन एफएमएसएम विल कम। सो आई नो यू हैव अदर प्रायोरिटीज, आई वोंट बी डिस्टर्बिंग यू, right? And I hope you enjoyed your time with me so far, especially the student who started with the regular classes. My goodness, ऐसा लग रहा है ऐसे बच्चे पाल के रखे मैंने तुम लोग, and I will be very much worried about your exams. The students who joined me for the recall session, this marks writing practice batch, this recall session, you have spent way too much time with me. You know a hell lot of things about me now. I know all of you by your name, what you do, how you behave in the class, when you can sleep. अनुराग को तो लिटरली मैंने ऐसा ना झपकी मारते हुए पकड़ा है आज। I know when you can fall asleep and everything. So I will be very much interested to know how your exam went, your result. Whenever your result come, I will wait to hear from you. So never hesitate that you cannot reach out to me. थोड़ा एज मेरा ज्यादा है, सो आई माइट लुक अ स्ट्रिक्ट पर्सन अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम ए फन पर्सन, बट समहाउ वो मेरे फेस से दिखता नहीं है, ठीक है। So don't hesitate and please reach out to me at any point of time you feel like talking to me about anything, ठीक है। I love to talk a lot and I love to guide people in whatever way possible. I will help you, but please पढ़ाई करो। टेक योर सीए एग्जामिनेशन, सीए डिग्री वेरी सीरियसली। उसके बाद जो करना है आपको करो लाइफ में। आई एम वन ऑफ द पर्सन हु सेज कि सीए करने के बाद सीए से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है लाइफ में ना, तो भी चलता है, बिकॉज दिस टीचेस यू इतना कि आप उसके बाद कोई एक छोटा सा मतलब बिस्लरी का बॉटल का भी दुकान खोल के बैठोगे, आई एम फाइन, यू विल डू इट फार बेटर देन एनी अदर लोकल शॉप, बिकॉज ऑफ द नॉलेज, द स्ट्रेंथ यू हैव गेन्ड परस्यूइंग दिस कोर्स। बट प्लीज जब तक यहां पर हो, गिव इट द ड्यू रिस्पेक्ट दिस कोर्स डिजर्व्स। डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स इन योर करियर दैट इट्स शॉर्टकट लेके सीए बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, राइट? Speaking from my personal experience as well. So I wish you all a very good night. Have a happy, nice rest of the evening. अगर जग रहे हो तो, नहीं तो सो जाओ, and कल से start your new day, right? मैम टाइमिंग क्या रहेगा मॉक टेस्ट का? 2 to 5 For which one? For मॉक टेस्ट? mock test, yes. Those who ओके are मैम। appear for mock test tomorrow, you can come for the mock test tomorrow. Cool. ओके I मैम। will post the more details about it tomorrow. Give me some time. Yeah? ओके मैम, थैंक यू मैम। Tomorrow नहीं ना, day चलो। after tomorrow, 29 को है ना शायद। ओके मैम, थैंक All यू। right, चलो, bye everyone. बाय मैम। सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye everyone. Bye guys. Take care.